Hello everyone, welcome to Answer Kari. Today we are discussing the Hindu newspaper of January 11th, 2024. In last couple of days, we discussed about several aspects of the news, right from the ISRO's Astrosat, Exposat, etc., to international relation in the Western Arabian region, Red Sea, etc. Or we will continue with that in coming session. India is seen as a crucial pillar of stability amid global uncertainty, says Modi. In the Global Investment Summit in Gujarat, our Prime Minister said that India is seen as a crucial pillar of stability. Why? Because IMF and World Bank all are predicting that India will continuously grow for 7.3%, 8%, etc. Demographic dividend is there. Then third would be India is developing into an investment hub, China plus one strategy. So uncertainty worldwide, climate change, food security, climate refugees, small wars, conflict, Israel Hamas, Russia Ukraine etc. तो उसके हिसाब से भी देखा जाए तो इंडिया इज अ क्रूशियल पिलर ऑफ स्टेबिलिटी, लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ एक्सेट्रा. इंडिया इज गोइंग टू हेड एज अ विश्व मित्र. विश्व गुरु का बात करता, अब मित्र हो गया. इंपॉर्टेंट की टर्म है, इसको ले सकते हैं. पोंगल फेस्टिविटीज, ऐसे मकर संक्रांति हो गया या फिर पोंगल हो गया, तो हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड और अक्रॉस इंडिया. नेक्स्ट, उस्ताद रशीद खान इज an important personality related to the Hindustan classical music. Ungarn salute was given to him. Next, Rajasthan CM flags of 2,100 oil drums for Sita Rasoi. For the Ram Darbar procession. Oil will be used for the cooking the food to be served for devotees attending the consecration ceremony on January 22, Ram Temple. Karnataka HC paves way for the men to join as nursing officer in army. This showcases that Karnataka High Court have been taking the initiative to break the stereotype. हमेशा से देखते हैं नर्सिंग जो ऑफिसर्स है, दे मोस्टली विमेन मोस्टली बिलोंग टू देम. तो ऐसा स्टीरियोटाइप ब्रेक करने के लिए विमेन हैव बीन गिवन मोर रोल इन द कॉम्बैट एरिया. जैसे एयरफोर्स में भी उनको रोल दिया गया, सिमिलरली इन द आर्मी परमानेंट कमीशन किया गया विमेन का भी. और अभी इसमें मेन को बोला है कि आप ज्वाइन कर सकते हो. पेव्स द वे फॉर द माइन ऑफ टू ज्वाइन नर्सिंग ऑफिसर. The court is of the view that exclusive reservation conferred on women while recruiting nursing of officers under the ordinance does violate the right. Exclusive reservation दिया गया था, तो it is a violation of right under Article 14, 16(2), 21. 14 is right to equality, 16(2) is matter of public employment, discrimination नहीं होना चाहिए. 21 में होता है कि right to liberty of the Indian Constitution as classification does not qualify the twin test prescribed by the Apex Court. तो सेपरेट क्लास जस्टिसेबल है कि नहीं, वो डिफाइन नहीं हुआ. और एक तरह से सेक्स बेसिस पर एक्सक्लूजन किया गया विमेन को, मेन को भी, इसलिए वैसा तोड़ा गया भी. तो इंपॉर्टेंट है, जेंडर न्यूट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट कदम है. छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट लॉन्चेस स्कीम फॉर अयोध्या विजिट. रामलला दर्शन योजना. अंडर स्कीम 20,000 eligible resident of the state will be taken to the holy city in Uttar Pradesh for pilgrimage every year. तो हम लोग जब बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सेक्युलरिज्म प्रिंसिपल, इंडिया सपोर्ट्स पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एंड इट इज इक्विडिस्टेंट और इक्वल प्रमोशन ऑफ ऑल रिलीजन. तो ये मुस्लिम से किया जाता है. फॉर द पिलग्रिमेज साइट्स सब्सिडी दिया जाता है. इवन
छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इज डूइंग फॉर द हिंदू पिलग्रिमेज। तो यहाँ पर 20,000 एलिजिबल रेसिडेंट ऑफ द स्टेट। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या स्टेट को इक्वली प्रमोट कर रहे हैं, तो इंडियन फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म है, लेकिन क्या सही में इंडिया को, इंडियन गवर्नमेंट को एक तरह से एक्सपेंडिचर करना चाहिए ऑन द रिलीजियस टूरिज्म? कि आप योजना के अंदर में आप बात करो कि आप रेसिडेंट को बोल रहे हो कि दैट वुड बी टेकन टेकन टू द होली सिटी इन उत्तर प्रदेश एवरी ईयर, तो 20,000 एलिजिबल रेसिडेंट, तो इतने जो फंड एक्सपेंडिचर होंगे कहीं और जगह भी डाल सकते हो, ई गवर्नेंस में या फिर डेवलपमेंट एक्टिविटीज में। प्रवेश। When we see the overall impact of such schemes, so they are providing much employment opportunities to the natives. When we are promoting the religious tourism, so the native of, let's suppose, Ayodhya and the UP, they will get more income. Their per capita income will rise. The MSM industry will get growth there. अगरबत्ती बनाएंगे, फूल बेचेंगे, और जितने भी जो horticulture है वो डेवलप होगा. So we should see such kind of schemes in that regard. Thank you. ठीक। Raphael 13, Bishop of Shamsabad, Telangana, has been elected Major Archbishop of Syro Malabar Church। प्रवेश, मेरे पास एक क्वेश्चन रहता है हमेशा, मुझे डाउट रहते हैं जो आप बता सकते हो कि वाटिकन सिटी इज अ कंट्री, ट्रू? प्रवेश। Yes, sir. Yes, हाँ। सेकंड क्वेश्चन है कि वाटिकन इज द आल्सो द सीट ऑफ द कैथोलिक चर्च, ये भी ट्रू? true. फ्रॉम दैट द होल ऑफ द कंट्री, होल ऑफ द वर्ल्ड जहां पर अपॉइंटमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू बिशप और आर्क बिशप एक्सेट्रा, वहीं से वाटिकन से होता है, ये भी ट्रू? Yes, तब ऐसा नहीं बोल सकता देयर इज अ फॉरेन इंटरफेरेंस विद रिस्पेक्ट टू द रिलीजियस एस्पेक्ट इन द कंट्री, कि कोई दूसरा कंट्री के अंदर से इंटरफेरेंस हो रहा है इन द मैटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट? no. मतलब क्यों? Well, I'll have to think about this more. So I हम्म, will, ठीक है। yeah, it was. मलयालम फिल्म मेकर वीनू पासेस अवे इन कॉम्बेटूर सक्सेसफुल मूवी मंगलम वेटी मनीश्वरी गुप्ता, not much required for the exam. Women accused of killing son making contradictory statements, says police. So we discuss. She was a CEO of AI startup Bangalore. तो several aspect of this issue was discussed. Emotional intelligence होना चाहिए. Second, mental health होगा issue. Third is egoistic over the custody of child between husband and wife. ये भी एक तरह का issue. तो सिर्फ इलिटरेट और बैकवर्डरिज्म ऐसा नहीं होता है, हाईली एजुकेटेड पर्सन भी ऐसा कर सकता है। महाराष्ट्र ओपन सेंटर्स इन बेलागावी फॉर हेल्थ स्कीम, बेलागावी डिस्ट्रिक्ट, ये और डिस्कस करते हैं कि इट इज अ Not इशू बिटवीन द महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, साउथ महाराष्ट्र नॉर्थ कर्नाटका में रीजन है उसके ऊपर है, तो उसी से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ बात हो रहा है कि महात्मा ज्योतिबा फुले हेल्थ स्कीम, cashless treatment to the beneficiary post treatment reimbursement into a hospital now extended to the Marathi speaking population in the border zone। तो हर एक सरकार, महाराष्ट्र चाहे कर्नाटका, चाहते हैं कि वो मेरे अंदर में आ जाए, Belagavi district should be part of that state, so they also implement schemes for their district also। तो ये दिखा कैशलेस ट्रीटमेंट एंड सर्जरी बेनिफिशियरी ओवर 1,000 हॉस्पिटल, इसमें ये भी इंक्लूड किया। apart from that, the Belgavi is known for GI tag Belgaum biryani. That is a kind of हम्म, basmati rice, and it lies in the Western Ghats. So हम्म, these two are the things about Belgaum. ठीक। ISC develops warm vaccine for COVID-19, a heat tolerant vaccine developed by ISC. It is said to be effective on all current strain of SARS-CoV-2, beside having the potential to be quickly adapted for the future variant। That's what develops warm vaccine, heat tolerant vaccine। हाँ ठीक है। इसमें बात ये होती है कि कोविड वैक्सीन नीड्स अराउंड टू टाइप्स ऑफ वैक्सीन, एक तो हो गया एस्ट्राजेनेका हो गया और दूसरा भारत बायोटेक का। तो कोवैक्सीन एस्ट्राजेनेका दोनों में फर्क है कि
जो एस्ट्राजेनेका है उसको -23 -22 के अराउंड रखना पड़ता है। तो वैसा बहुत मुश्किल होता है कोल्ड स्टोरेज का फैसिलिटीज जनरेट करना हर एक डिस्ट्रिक्ट में। और जो कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन है, इसको थोड़ा कम करना पड़ता है। तो ये अभी जो वैक्सीन बना है डेवलप बाय आईएससी, इट इज हीट टॉलरेंट, इसको आप रख सकते हैं लॉन्ग टर्म। और दूसरा की इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल द स्ट्रेन्स, दोनों, म्यूटेशन कम हो जाएगा इसमें। आफ्टर रिकॉर्ड 1111 एनजीओ गॉट एफआईआर एफसीआरए नोड इन 2023, 30 गेट क्लियरेंस इन जनवरी। तो एफसीआरए अमेंडमेंट किया गया था। एफसीआरए इज नाम में ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन जहां से होता है, इट शुड बी रेगुलेटेड। तो 2010 के अंदर में एक्ट आया था। और ऐसा पाया गया था कि बहुत सारे जो एनजीओ है जिसमें फॉरेन फंडिंग होता है, तो दे मोस्टली यूज दैट फंड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। हो सकता है कि लॉबी करना हो तो एनजीओ खोल के किसी और के थ्रू लॉबी कर दो। एज पर्टिकुलर जर्नलिस्ट हो सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो सकते हैं, नॉर्मल प्रोफेसर हो सकते हैं, एक्सेट्रा। और बाकी जो एक्सपेंस है ना वो सिर्फ ग्राउंड लेवल पर काम करता है। तो ऐसा रूल्स है, हाँ, 2022 में या फिर 20 में आया था कि आप फॉरेन फंडिंग लाओगे एफसीआरए के अंदर में, लेकिन देयर विल बी अ रिन्यूअल ऑफ द एनजीओ लाइसेंसेस। सेकेंड वुड बी सी एसबीआई ब्रांच जो दिल्ली में, उन्हीं के अंदर में आपको बैंक का अकाउंट खोलना पड़ेगा हर एक एनजीओ को, ताकि इससे एक तरह से डिजिटाइजेशन हो और फिर ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाए इन द फॉरेन फंडिंग। दूसरा तीसरा पॉइंट था कि 75% ऑफ द जो फंड है दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन द प्रोजेक्ट रादर देन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वही की गाड़ी, घर, सैलरी एक्सेट्रा, वो सिर्फ 25% होना चाहिए। प्रवेश, 25%. क्या हुआ? I'm asking 25% fund only be used for administration. हाँ 25 अराउंड है, वैसे सर्च कर लेना, वैसे ही होगा आई थिंक, Okay. कॉन्फिडेंट। तो एफसीआर हो गया। और दूसरा बोला कि तो फिर उसके बाद क्या, एमएचए ने उसी प्रोविजन को यूज करके बहुत सारे जो एनजीओ थे उनको बोला कि लाइसेंस रिन्यू करें। कोई कोई एनजीओ रिन्यू नहीं किए, तो उनको छोड़ के जाना पड़ा। तो प्रोमिनेंट एनजीओ नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल, वो छोड़ के चले गए 2022 में। तो लिखा हुआ है 55,741 अक्रॉस फाइनेंशियल ईयर 19 से लेकर 22 के बीच में फॉरेन फंडिंग मिला 13,520 एसोसिएशन को। और 16,986 फॉरेन एफसीआर रजिस्टर्ड एनजीओ अभी एक्टिव है कंट्री के अंदर। तो 6,000 एनजीओ के बिकेम ऑपरेटिव फ्रॉम जनवरी 1। तो सोचो कि इतना सारा एनजीओ है और उसमें सिर्फ 30 को क्लियरेंस मिला है। तो कितने सारे एनजीओ हो सकते हैं जिनका फंडिंग एक सही डायरेक्शन में नहीं किया होगा या फैसा। तो इसको एक डेटा को लिख सकते हैं, 55,000 फाइनेंशियल 55,000 करोड़ फंडिंग दिया गया एनजीओ को फ्रॉम फॉरेन इन लास्ट 3 ईयर्स, ऐसा लिख सकते हैं। और सेकंड इज 17,000 करेंटली है इंडिया में एनजीओ एफसीआरए रजिस्टर्ड। असम के डीजीपी बोलते हैं यूथ से कि कीप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जोन। तो असम से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट सेपरेटिस्ट बॉडी अल्फा, दे हैव केम इनटू अग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ असम एंड इंडियन गवर्नमेंट, वी डिस्कस दैट 29 नवंबर 2023 के आसपास में हुआ था। उसके तहत में दो तीन स्कीम भी इम्प्लीमेंट किया गया था, रिहैबिलिटेशन कम रीसेटलमेंट स्कीम ऑफ सरेंडर योर आर्म्स और इंटीग्रेशन विद द रेस्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम इंडिया। अल्फा के साथ कैडर के साथ किया गया, सैलरी भी दिया जाता है उन्हें। अब मणिपुर के जो सीएम थे वो बोले कि वी शुड रिव्यू द एसटी स्टेटस ऑफ द कुकी जो कम्युनिटी। मीति डिमांड करते थे एसटी स्टेटस के लिए, जब उनको मिलने लगा तब फिर वायलेंट एक्टिविटी स्टार्ट हुआ और प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। उसके बाद से आज क्लैश हुआ मणिपुर में। तो मणिपुर सीएम वो बोले कि अब एसटी स्टेटस कुकी और जू को करो, तो आउटफिट है वो पोस्ट द मूव। तो कल हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़े थे इसमें, कुकी जो है वो सिंगल ट्राइब नहीं, इट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ट्राइब्स। तो ओवरऑल इनको नाम बोलते कुकी, दे आर हिल ट्राइब, दे रिसाइड इन द हिल्स। मकर संक्रांति काइट फेस्टिवल फेमस है, राजस्थान में होता है अच्छा खासा।
हर जगह होता है, लेकिन मेजरली राजस्थान, गुजरात देख सकते हो। तो इंडिया यूके के बीच में प्रवेश। ऐसे क्या गुजरात में स्पेशली क्यों होता है, जो आपने बोला अभी? गुजरात में, आपने बोला ना कि गुजरात में ही मेनली होता है, तो ऐसा नहीं, क्या? राजस्थान राजस्थान। हाँ, राजस्थान। गुजरात में तो भी होता है राजस्थान और सब जगह होता है, तो बिहार में भी होता है, झारखंड में भी होता है, लेकिन मोस्टली राजस्थान में होता है, जयपुर में बोला जाता है एक तरह से। आप बता दो, आपको पता होगा हिस्ट्री तो। ये मेनली गुजरात में मनाया जाता है as उत्तरायण, मतलब हम्म, सन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जब वहां से होकर गुजरता है, तो ऐसा बोलते हैं कि जो एक मकर राशि होती है उसके अंदर सन एंटर करता है, तो इस वजह से मेनली तो गुजरात से आया है। उसके बाद अलग अलग सिटीज अलग अलग स्टेट से मनाया जाता ठीक। नेक्स्ट, यूके टू सेंड एडवांस नेवल ग्रुप्स फॉर ट्रेनिंग विद इंडियन फोर्सेस। तो विद रिस्पेक्ट टू द यूके, हम लोग हमेशा बात करते हैं डिफेंस ट्रीटी विथ इंडिया फ्रांस, इंडिया रशिया, इंडिया इसराइल, इंडिया यूएस, मेजरली इसी से अराउंड ही है। लेकिन इंडिया यूएस यूके के साथ क्या हो सकता है? तो कल दो बात किए थे, डीआरडीओ और उसके जो डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट थे, एजेंसी थे, उनके बीच में कोलैबोरेशन, रिसर्च और रिसर्चर वहां के और अपने यहाँ रिसर्चर के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और बातचीत होना चाहिए। और भी कर सकते हैं, लाइक मोर कोऑपरेशन बिटवीन द एक्सरसाइजेज बिटवीन द रिस्पेक्टिव मिलिट्री। दूसरा, इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम को हम लोग काम कर सकते हैं इस पे। टू नेशन वर्किंग टुगेदर ऑन द इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन सिस्टम दैट विल पावर आवर फ्यूचर फ्लीट, फ्लीट ऑफ नेवी का बात हो रहा है, ऑफ कॉम्प्लेक्स वेपन्स, लॉन्चिंग डिफेंस इन पार्टनरशिप इंडिया, फिर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन। तो जब हम डिटेल में बात करते हैं तो इंडिया यूके के साथ ज्यादा कोलैबोरेशन नहीं है एज कम्पेयर टू फोर कंट्रीज वी डिस्कस्ड। लेकिन दो में यूके आगे है। पहले बात है जेट इंजन बनाते हैं और दूसरा चीज की न्यूक्लियर सबमरीन उनके पास है, इसलिए ऑकस अग्रीमेंट किया गया विद ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड यूके। ये शिंदे ग्रुप कैंप का बात कर रहे हैं और फिर उद्धव ठाकरे बात कर रहे हैं। ये दिस लुक्स रियल, ऐसे शिवसेना उद्धव ठाकरे, उद्धव बाल ठाकरे, एक और शिवसेना, तो दोनों के बीच में क्लैश होता है विद रिस्पेक्ट टू बीएमसी पोल, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स। सीआईएसएफ टेक्स चार्ज ऑफ द सिक्योरिटी एट द न्यू अयोध्या एयरपोर्ट। तो सीआईएसएफ सेंट्रल, नाम में ये इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडस्ट्री से रिलेटेड, पोर्ट, न्यूक्लियर फैसिलिटी, एयरपोर्ट, रेलवेज भी हो सकता है, और भी जो इंपॉर्टेंट स्टैब्लिश हैं, पीएसयू हो सकते हैं, सब में सीआईएसएफ गार्ड करते हैं। तो सीआईएसएफ टेक्स चार्ज ऑफ द सिक्योरिटी न्यू इधर तो एयरपोर्ट। तो ऐसा अगर बोला जाएगा तो टिक मार्क कर सकते हो, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के नीचे मात्र। अंडर न्यू डील ईच स्टेट कैन फिल टैब्लू वंस इन 3 years। तब इसमें बात हुआ कि अब हमेशा सिलेक्शन होता था, तो देर वर ऑलवेज अ कंट्रोवर्सी बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंटर, और डिफरेंट पार्टीज होते तो और होता था कि स्टेट अक्यूज सेंटर ऑफ शोकेसिंग पार्टीशनशिप इन चूजिंग द टैब्लू। तो इसमें अग्री किया गया, 20 स्टेट अग्री टू डिफेंस मिनिस्ट्री तय करते हैं टैब्लू क्या होना चाहिए। तो ये इंटरेस्टिंग होगा। न्यू रोटेशन प्लान फॉर रिपब्लिक डे परेड इन विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विल बी अकोमोडेटेड ऑल। और उसके बाद जो 28 स्टेट्स हैं, एक तरह से उनको मिलेगा मौका, हर एक 3 साल में एक बार आप रोटेट कर सकते हो पूरा का पूरा टैब्लू को। जैसे लिखा है, कर्नाटका है डिस्प्लेड टैब्लू इन रिपब्लिक डे परेड एवरी ईयर, 15 से लेकर 23। तो ऐसा हो सकता है, बायसनेस हो सकता है हर एक स्टेट के हिसाब से। तो ये मिल गया ऐसा। आईएनबी मिनिस्ट्री सस्पेंड न्यू चैनल लाइसेंस फॉर 30 days। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सस्पेंशन कैसे किया जा सकता है। तो टेलीग्राफ एक्ट होता है, उसके बाद फिर 1885 है, प्रवेश यू कैन करेक्ट मी। उसके बाद आईटी इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन रूल,
IT एक्ट ये भी आ गया 2002, उसके अंदर में सेक्शन 69A है। सब में आप लाइसेंस के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हो। और INB मिनिस्ट्री इज रिलेटेड टू द चैनल, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। SC रिपोर्ट एक्सपोजेस सीवियर गैप्स इन एक्सेसिबिलिटी ऑफ द डिसेबल पर्सन। तो इसको हम लोग डिटेल में लेते हैं कि UN की तरफ से भी कन्वेंशन ऑन डिसेबिलिटी है, फिर उनके पास भी एक प्रोटोकॉल है कैसे ट्रीट करना चाहिए डिसेबल पीपल को। दूसरा, कल भी हम लोग डिस्कस किए थे, डिसेबल फ्रेंडली वर्ड्स को यूज करना चाहिए हर जगह। और इन मैटर्स ऑफ रिजर्वेशन ऑल्सो प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट हैज स्टेटेड दैट उनको एक और मौका मिलना चाहिए एज कंपेयर टू ST SC, उनको भी मिलना चाहिए, PWD को भी, इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन एंड रिजर्वेशन। तो द कंट्री डू नॉट हैव रैम्प्स, तो सोशल ऑडिटिंग करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कि वो एक तरह से डिसेबल फ्रेंडली है कि नहीं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि एक तरह से एलिज की है कि 25% जो है व्हील चेयर उनके पास असिस्टमेंट के नहीं मिलता है उनको। दूसरा, हैव टेक्टाइल पेविंग टू असिस्ट पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी इन नेविगेटिंग द कोर्ट बिल्डिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द इंडिया raising serious concern about the impediment faced by the people with disability. Disable free toilet, disable accessible friendly infrastructure, environment और जजमेंट। जजमेंट को होता है ना कि ब्रेल में आप कर सकते हो या फिर वॉइस में कर सकते हो, ताकि इनको हियरिंग एड है, इनको लिसनिंग हेड है, फिर आई साइट प्रॉब्लम है, वो देख सकते हैं, तो वो दिक्कत है। तो कल वाला आर्टिकल थोड़ा सा डिटेल में था, उसको ले सकते हैं। तो साइन लैंग्वेज ये सब वर्ड है, तो इसको ला सकते हैं। इंटरप्रेटर हियरिंग डिसेबिलिटी से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आर्म्ड यूवी इन द हैंड्स ऑफ नॉन स्टेट एक्टर पोज अ चैलेंज। एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर बोला जाए तो हुदी रेबल्स। स्टेट नहीं है, येमन के स्टेट अलग है, रेबल्स है वो, नॉन स्टेट एक्टर, तो चैलेंज हो गया रेड सी में। एक और नॉन स्टेट एक्टर जासे मोहम्मद, जो कश्मीर में ड्रोन अटैक हुआ था, पंजाब पुलिस स्टेशन के ऊपर भी और पठानकोट के ऊपर अटैक हुआ था, ड्रोन अटैक, तो वो भी एक तरह नॉन स्टेट एक्टर किए थे। तो इट विल पोज अ चैलेंज, तो एंटी ड्रोन वॉरफेयर भी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रॉम डिफेंस जो चैप्टर है इन द साइंस एंड टेक, उसमें बात कर सकते हैं ये मेल दृष्टि 10 स्टार लाइनर मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV मैन्युफैक्चर बाय अडानी डिफेंस एरोस्पेस फॉर द नेवी इन हैदराबाद। तो ये अडानी ग्रुप का बना हुआ है, ये इजरायली दृष्टि 10 स्टार लाइनर मेल। इजरायली दृष्टि 10 है लेकिन वहां बना हुआ है अडानी। 70% इंडिजिनस कंटेंट है, तो कभी बोलते हैं कि इट इज 100% इंडिजिनस, ये रेडिकल स्टेटमेंट हो जाता है, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। तब हर्मिस जो 900 UAV है, इन्हीं का एक वर्जन बना दिया गया जो इंडिया में, और जो अडानी ग्रुप ने बनाया हैदराबाद में। तो अडानी वाला ग्रुप में इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि देयर इज इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन इन द डिफेंस प्रोडक्शन। जैसे हम लोग इसरो में बात करते हैं, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL, या फिर इन स्पेस का बात होता है कि कमर्शलाइजेशन करना है, मोर इंटीग्रेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। उसका एक एग्जाम्पल कि मेल UAV बनाया गया हर्मिस को कॉपी करके बाय द अडानी ग्रुप इन हैदराबाद। हाउ अ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल फ्रॉम द आउटर स्पेस कुड हेल्प फिजिक्स। अ कॉस्मिक रे, उसका नाम एमेचेरिसु, appears to have reached the Earth from the empty part of the universe, possibility of the astronomical phenomena and new physical origin beyond the standard model in an era of origin। कॉस्मिक रे क्या होता है वो पता होना चाहिए कि इट इज स्ट्रीम ऑफ द एनर्जेटिक पार्टिकल क्लस्टर ऑफ द पार्टिकल्स कमिंग फ्रॉम आउटर स्पेस एंड सन। कॉस्मिक कॉस्मोस, कॉस्मिक रेज आ रहा है बाहर से, आउटर स्पेस एंड सन। क्या होता है उसके अंदर, प्रोटॉन होता है, अल्फा पार्टिकल होता है। लो इंटेंसिटी कॉस्मिक रे रीच द अर्थ सर्विस। एंड कॉस्मिक रेज जो होती हैं वो अर्थ के क्लाइमेट को कैसे इम्पैक्ट करती हैं? अर्थ के क्लाइमेट को कैसे इम्पैक्ट करती है?
कॉस्मिक रे, अर्थ की क्लाइमेट, आप बताओ, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है कि वो आयनोस्फेयर में डिसिपेट हो जाते हैं उनका एनर्जी, ऐसे लिखा हुआ है कि और आई lead थिंक क्लाइमेट नहीं, एटमॉस्फेयर होना चाहिए ना। एटमॉस्फेयर को तो इम्पैक्ट कर सकती है, क्लाइमेट को कैसे इम्पैक्ट करेंगी? यहाँ पे लिखा हुआ है cosmic rays leads to more clouds and net cooling of the planet। कहाँ पर, बस लिखा हुआ मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, थैंक यू बताने के लिए। एंड जो सन की मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, जो कि अर्थ को शील्ड करती है कॉस्मिक रेज से, उसको भी इम्पैक्ट करती है। जो सोलर एक्टिविटी होती है जब हाई होती है, तो जो शील्ड होती है वो वीकन हो जाती है, जिससे कि जो कॉस्मिक रेज है वो ज्यादा पहुंचती है अर्थ के सरफेस तक। एंड जो क्लाउड फॉर्मेशन मेंशन किया उसमें भी इम्पैक्ट दिखाई देता है। ओके। हम्म। तो इसमें बोला कि जो कॉस्मिक रे लेट साइंटिस्ट टू डिस्कवर मेनी देन अननोन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इसलिए इंपॉर्टेंट है कॉस्मिक रे। और एलएचसी जो बात करते हैं, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, सर्न में जो है, इट इज वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पार्टिकल स्मैशर लोकेटेड इन यूरोप, सर्न। कॉस्मिक रे आर, सो कॉस्मिक रे आर और ओनली सोर्स एट वेरी हाई एनर्जी पार्टिकल। ओ ठीक है, मतलब बात हो रहा है कि सब एटॉमिक पार्टिकल को स्टडी करना है अगर, तो दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो आप खुद से बना, फॉर एग्जाम्पल एलएचसी है, वहां पर आप टकराते हो तो उसमें एक सब एटॉमिक पार्टिकल पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं माइक्रो सेकंड के अंदर में। और दूसरा है कि आप कॉस्मिक रे को स्टडी कर सकते हो। तो ये उसी की बात कर रहे हैं। तो अभी जो कॉस्मिक रे आ ही रहा है बाहर से, तो इसको स्टडी कर सकते हैं। तो इज द ओनली सोर्स ऑफ वेरी हाई एनर्जी पार्टिकल इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट्स, इसको स्टडी कर सकते हैं। The amazing feature of the Amaterasu particle is that if you look along the direction it came towards its point of origin, there is nothing to be seen. Meaning it appears to be have come from empty part of the universe. ठीक है, कैसे हेल्प करेगा? कॉस्मिक रे कैन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दोज हु कम बियॉन्ड द सोलर सिस्टम कॉल्ड गैलेक्टिक कॉस्मिक रे, GCR, एंड हाई एनर्जी पार्टिकल्स एमिटेड बाय द सन कॉल्ड सोलर कॉस्मिक रे। दो टाइप के कॉस्मिक रे होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ था ना कि सन आउटर स्पेस या सन से आता है पार्टिकल, हाई एनर्जी बीम, तो कॉस्मिक रे हो गया। तो गैलेक्टिक हो सकते हैं या सन हो सकते हैं। सोलर कॉस्मिक रे ओरिएंटेड प्राइमरीली सोलर फ्लेयर, द आउटर बाउंड्री ऑफ द सन है, उनका सोलर फ्लेयर निकलता है उसमें से, तो बोल सकते हैं। तो GCR इट इज स्लो चेंजिंग स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी पार्टिकल दे कॉन्स्टेंट स्ट्राइक द अर्थ, दे आर थॉट टू बी ओरिजिनेट आउटसाइड द सोलर सिस्टम इन द इवेंट कॉल्ड सुपरनोवा। सुपरनोवा होता है जब एक्सप्लोजन होता है मैसिव स्टार नियर्स द एंड ऑफ इट्स लाइफ, जब स्टार जब फ्यूल जब खत्म हो जाता है और उसके बाद फिर जब फट जाता है, तो आई थिंक सुपरनोवा उसको बोलते हैं, आफ्टर रनिंग आउट ऑफ मैटर दैट इट कैन फ्यूज। तो 89% ऑफ GCR इज हाइड्रोजन, ये भी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन। और उसके बाद फिर और भी हो सकता है, फॉर ट्रेसेस ऑफ यूरेनियम आयोनाइज होता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी अफेक्ट करते हैं एक तरह से, दे इंटरेक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड, आयोनाइज भी कर देता है एयर molecules at least 30 किलोमीटर above the surface of the earth। ठीक, अच्छा, तो ओवरऑल डिटेल में बात कर सकते हैं कॉस्मिक रे के बारे में। अब कल भी डिस्कस किए थे कि 2023 may have been the warmest in one